Hello guys and welcome back to this amazing channel. This is Abhinav. So after a long time, after a very long time actually, we are back with our Code Forces contest editorials. Yeah, and from now like regularly Code Safe, Code Forces, Read Code, all of that will be there. Plus I will try for the Ad Coder contest also, right? So in this particular video, we will discuss about Code Forces round 956. So we'll actually discuss about the first four problems of this round from A to D. Okay, we'll discuss about A, B, C, D problems. I will say this contest was of good level. All the problems were of different concepts and of good level actually. So we will discuss all of that one by one. So starting from the first problem, which is array divisibility, corner twist, then have your cake and eat it too, and then swap dilemma. Okay, cool. So let's start with the very first problem. First problem is pretty, just logical observation based question. The question says that you are having an array of integers from a1 to an is called beautiful. So basically they are saying that the array of element is called beautiful if for an integer k, the sum of aj, where j is the multiple of k, is also multiple of k. Basically sum of all the elements, sum of all the indexes which are multiple of k. So we will first of all take a k, then I will take all the indices which are multiple of k. Then the sum of those indexes means the element of those indexes that should also be multiple of k. And this k will range from 1 to n. So you have to tell a array such that this property holds. Let me give you an example. For example, if you will see, let's say your n is 3. So for n is equal to 3, you can see that they are giving array as this, which is 4, 22 and 18. बिकॉज अब देखोगे अगर हम k इज इक्वल टू 1 लें then obviously we will consider all the indexes, तो सारी indexes consider होंगी and 1 से divisible होगा ये sum, right? अब we will let's say we will take k is equal to 2. So when we will take k is equal to 2, then you will just take this index which is obviously divisible by 2, and when you will take k is equal to 3, you will just take this index which is obviously divisible by 3. अब let's say we have a greater value of k of n, let's say मान लो अब आपके n की वैल्यू है 6. तो जब n की वैल्यू 6 होगी तो आपका ये आउटपुट आ रहा है. दिस इज द आउटपुट दैट दे आर गिविंग. लेट्स सी वेदर इन दिस आउटपुट वो केस ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? तो हेयर फॉर k इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली होगा. यू विल फाइंड सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिकॉज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 1 एंड वो होगा, राइट? अब फॉर k इज इक्वल टू 2 यू विल टेक ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2. सो यू विल टेक 6 प्लस 32 प्लस 54 एंड यू विल सी वट एवर इज द सम वो भी 2 से डिविजिबल होगा. तो अगेन इट्स फाइन. Now let's take k is equal to 3. Now for k is equal to 3, it will just take 15 and 54, which is actually 69, which is actually divisible by 3. तो again ये भी possible है, ठीक है? अब k is equal to 4 के लिए सिर्फ एक बनेगा. For k it is just this which is divisible. For 5 it is just this divisible. 6 it is this divisible, right? तो means ये array जो है आपकी सारे k from 1 to n it is there, means it's a beautiful array. But how we can find such an array? So you are just given with the value of n, and you have to find the array such that for all the values of k from 1 to n, that condition is satisfied. So guys, the problem is very clear. We will just take array of numbers from 1 to n and that's it. Now you will say, sir, how? So basically it is just a problem of observation. If you will observe, you will feel that देखो ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है ना, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर ए है ये. ए है मतलब कि उतना कॉम्प्लेक्स तो कुछ जाएगा नहीं कि भाई डीपी या फिर बहुत हार्ड ग्राफ और ट्री लगेगा, नहीं. तो बेसिक कुछ सोचना है. तो इट्स सिंपल लाइक इफ यू विल इवन टेक अ सब लाइक एरे फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, तो भी आप देखो सारे केसेस विल वर्क. फॉर के इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली इट विल वर्क. फॉर के इज इक्वल टू ऑल्सो यू कैन सी ये सारे 2 के मल्टीपल हैं. के इक्वल टू 3 ऑल्सो ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं. 4 5 6 ऑब्वियसली. तो सिंपली वी विल प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n एंड दैट्स इट. इतना ही क्वेश्चन है, right? This is the logic. So if you will see here what I did, so you can see I'm just taking input of n and then printing numbers from 1 to n. इतना ही logic है और कुछ भी नहीं है, nothing else, not a single problem. ठीक है? So this is how we will find this particular problem. It's a basic problem, I think. Okay, not that much difficult. Moving forward to the next problem, which is problem number B. It is saying coordinate twist. अब देखो, this problem is again pretty different. This problem says that you are actually having two grids A and B.
and both the grid contains values 0, 1 and 2. So either 0, 1 or 2. Okay. Now what you can do, you can pick any subrectangle in a grid, okay, of length at least, length and width at least 2, मतलब 2, 2 by 2 से बड़ा ही होना चाहिए rectangle, right? And you will take two opposite corners of that, and two opposite corners that are you will add 1 to their value and module 3. Basically अगर उनकी वैल्यू 0 होगी तो 1 हो जाएगी, 1 होगी 2 हो जाएगी, 2 होगी तो 0 हो जाएगी. तो ये हम करेंगे वन डायगोनल अपोजिट पेयर ऑफ कॉर्नर्स, एंड द रिमेनिंग पेयर ऑफ कॉर्नर्स वी विल ऐड 2. तो हम लोग दो अपोजिट कॉर्नर्स में 1 ऐड करेंगे एंड दो अपोजिट कॉर्नर में वी विल ऐड 2, राइट. एंड बाय डूइंग दिस व्हाट वी कैन डू, और ये हमें ऑपरेशन करना है एरे सॉरी मैट्रिक्स ए पे. And by doing this, we have to just find that is it possible to convert grid A into grid B after any number of operations. So we don't have to find any minimum number of operations, nothing. Just we have to say yes or no, true or false, that whether it is possible or not possible. ठीक है. अब देखो guys how we will solve it. Understand very carefully. Obviously, when we have to take a rectangle, right? When we have to take a rectangle, so when should we choose a rectangle? So in the rectangle, if you will see in the corners of the rectangle, so if you will take a rectangle, only the corners of that rectangle will be changed. Apart from the corner, nothing else will change. Two opposite corners will be added by 1 and two opposite corners will be added by 2. This is what will happen, right? A problem is ki what should we do? What should we do? So basically the thing is that we will choose only that corner where the value is not equal to b, where the value of a, let's say there's a cell I comma j. So if value of a I comma j is not equal to value of b I comma j, then only we will apply this operation. Now you will say, Abhinav, what size of sub-rectangle we should take? Just take the size of 2 by 2 only. There is no need to take a larger sub-rectangle, because they are not asking us optimize, they are not asking us minimum number of operations. They are just asking us yes or no. तो जहां जहां पर भी इंडेक्स सेम नहीं है वहां पे ये ऑपरेशन कर दो जब तक वो इंडेक्स सेम ना हो जाए. लेट मी गिव यू एग्जांपल. तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो मान लो हमारे पास एक ग्रिड है ए, वो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, ये ए है और एक बी है. ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे कि आई विल सिंपली आइट्रेट थ्रू ऑल द इंडेक्सेस ऑफ दिस ए एंड बी. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब देखो कि भाई ये जो हमारा इंडेक्स है ये इससे मैच नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट मैचिंग दिस. तो हम क्या करेंगे, तो आई विल मेक चेंजेस इन दिस ए. तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेके हम एक ले लेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ जस्ट साइड 2, जिसमें एक ये साइज हो जाएगा. ठीक है, एंड वी विल कंसीडर इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, लेट्स से इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे. इट डिपेंड्स, आप जो चाहो, आप चाहो यहाँ पे 2 ऐड कर लो, यहाँ पे 1 ऐड कर लो, एनीथिंग. और हम ये ऑपरेशन बार बार रिपीट करेंगे. ठीक है, तो हम कहने में क्या किया भाई, हमने पहले भाई ऑपरेशन एक बार रिपीट किया. जब एक बार रिपीट किया ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, 4 mod 3 1. अभी भी देखो आप इक्वल नहीं हुआ है, अभी और ऐड कर लो. अब इसमें एक ऐड करोगे इन दोनों में तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसमें 2 ऐड होगा ना, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, इट विल बी 0 1 2 0 और 0 0 0 1. तो अब देखो ये दोनों तो सेम हो गए. अब ये दोनों ऑलरेडी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है. अब यहाँ पे आते हैं, ये और ये सेम नहीं है, तो अब अगेन इन दोनों के लिए फिर से सेम चीज़ कर लो. ये चीज़ ले लो, इसमें ऑपरेशन कर दो, +1 पहले करो, यहाँ +2 करो, अभी भी सेम नहीं हुआ, फिर एक बार +1 कर दो. अब आप देखो सेम हो गया, ये भी 2, ये भी 2. आगे बढ़ जाओ. तो फॉर एवरी आई कॉमा जे जहां पर ए एंड बी आर नॉट इक्वल वी विल डू. And after doing it for all the possible indexes, if at the last a and b are not becoming equal, that means it is not possible, right? So if you will see what I did is, if you will see what we did is, so it is something like this.
I will first of all take input of this is vector both the, so if you will see, they have given each column or each row of a vector of the matrix as a string. Okay, so I've taken a vector of string of size n, and every string is of size m. Okay, now I'm iterating through both the strings, and for any ij, so for a I comma j, if it is not equal to b a I comma j, so I will perform this operation on what? So let's say if we are currently at index I comma j, and this index I comma j is not equal to index I comma j of b, that means we need to apply this operation on that particular सब मैट्रिक्स. तो ये आई कॉमा जे, तो ये हो जाएगा आई कॉमा जे प्लस वन, हो जाएगा आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, एंड ये हो जाएगा आई कॉमा जे प्लस वन, सॉरी आई प्लस वन कॉमा जे. ओके, तो अल्टीमेटली हम उन ये जो ऑपरेशन है ना प्लस वन प्लस टू वाला, वो उन सब में करेंगे. तो हम अपने ए आई कॉमा जे में सिर्फ वन को ऐड करेंगे, आई प्लस वन जे प्लस वन को ऐड करेंगे अपोजिट डायगोनल्स में, और बाकी अपोजिट डायगोनल में टू को ऐड करेंगे. तो ऑपरेशन क्या कर रहा है? दिस ऑपरेशन इज डूइंग नथिंग, दिस ऑपरेशन इज जस्ट हैविंग अ कैरेक्टर, क्योंकि इट इज अ कैरेक्टर, राइट? दिस मैट्रिक्स कंटेन्स कैरेक्टर, तो इट इज जस्ट एडिंग दैट डेल्टा इन द कैरेक्टर. तो अगर वो एक जीरो का कैरेक्टर है तो वो प्लस वन करके वन का कैरेक्टर हो जाएगा, वन का है टू का हो जाएगा, टू का है तो फिर से जीरो का हो जाएगा. ओके, बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग करेंटली. तो ये ऑपरेशन क्या करेगा? उनको इंक्रीज कर देगा. And after doing all these operations, all such operations for all the indexes, if at the last a and b are not equal, then print no, else print yes. Okay, so this is what we are doing, guys. But yeah, still if you guys have any doubt regarding the first or second problem, you can ask that to me in the Telegram channel. Okay, or you can ask in the comment section. Okay, amazing. Now guys, moving forward to C questions. C question is also pretty, not that much difficult, but yeah, it's, I will say, a brute force problem. This problem says that so there's a three-person, Alice, Bob, and Charlie. Okay, and there is some n pieces of cake. Now this Alice, Bob, and Charlie, they all have different prices for these cakes. So Alice has n different prices for all the piece. Bob has n different prices, and Charlie has n different prices for the piece. Okay. Now what you have to do is, and they are saying that the sum of all this A, B, and C is equal to TOT. There is something called TOT, okay, which is, let's say, total of all ऐसे करके जो भी है. Now what you have to do, you have to actually divide your cakes into three parts, or basically into three. Basically, you have to take three sub arrays out of that array of cakes, and you have to assign every sub array, each sub array, into each of Alice, Bob, and Charlie. And the thing is that sum of elements in that sub-array having Alice, Bob, and Charlie, that should be greater and equal to TOT by 3, means the seal division of TOT by 3. ठीक है, ये आपको करना है. लेट मी गिव यू एग्जांपल. तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला केस ले लें, इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा n है 5. n5 का मतलब क्या है कि देयर आर 5 केक्स. ओके, now this is what Alice rate is, this is Bob rate, and this is Charlie rate. Up total, if you will see, the value of TOT that they are saying here is 9, and the value of 9 by 3 is 3, means every person sub array should contain at least 3 elements. If I will do indexing here, I am doing one base indexing. तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग पहले दो इंडेक्सेस जो है ना, लेट्स से वो हम दे देंगे Alice को. सम कितना हो गया? 6 हो गया, विच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3. सेकेंड इंडेक्स हम दे देंगे बॉब को, यहाँ भी सम कितना हो गया? 6 हो गया, और बचा हुआ दे देंगे हम Alice को. तो अब देखो सबका सम भी ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 है, एंड सब एरे इज ऑल्सो डिवाइडेड. बट ये क्या हमेशा पॉसिबल होगा? इन सम केसेस में भी हम लोग पहला पार्ट बॉब को देंगे, कहाँ तक वो भी नहीं पता, फिर चार्ली को, फिर Alice को. तो विल एक्चुअली चेक फॉर ऑल द पॉसिबल टेस्ट केसेस. तो हमारा ये बहुत ग्रीडी अप्रोच है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन होगा इसका. तो मैंने क्या किया हुआ है, what I do is I have first of all made some integer code for Alice, Bob, and Charlie. So in my solution, Alice is 0, Bob is 1, Charlie is 2. Okay, and every of them has their own prices list. Okay, now what I did, we will take a sub array, or we will take elements in a particular person until the sum is less than total, or whatever our target is, let's say x, जो कि total by 3 होगा. ठीक है, तो x है.
जैसे ही एक सब एरे का सम x से ऊपर हुआ, whenever the sum of a sub array will become greater than equal to x, means that part is done for that particular person. Next part will be for the next person. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 इंडेक्सेस हैं, ठीक है, तो मान लो हमने इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इंडेक्स, लेट्स से 1 से लेकर 2 तक हमने एलाइज को दे दिया, और 1 से लेकर 2 तक में सम उसका एटलीस्ट x हो गया। नाउ प्लस लेट्स से 2 से लेकर 4 तक हमने दे दिया, 3 से लेकर 4 तक दे दिया हमने बॉब को, और फिर 5 से लेकर 5 तक हमने दे दिया चार्ली को। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली फाइंड कि ओके फर्स्ट पार्ट किसको दे एंड हाउ मच फर्स्ट पार्ट अंटिल वी हैव दैट पर्टिकुलर सम, देन रिमेनिंग नेक्स्ट पार्ट, देन रिमेनिंग पार्ट। ओके, एंड दिस ऑर्डरिंग विल बी एवरीथिंग। तो हम लोग हर ऑर्डरिंग देखेंगे, अगर 0 एलाइज है 1 बॉब 2 चार्ली, तो हम लोग एक ऑर्डरिंग होगी 0, 1, 2, पहले एलाइज देन बॉब देन चार्ली, देन इट विल बी 0, 2, 1 ऑल्सो एलाइज चार्ली बॉब, देन इट कैन बी 1, 2, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 2, 0, 1। तो ऑल दीज ऑर्डरिंग्स विल बी कंसिडर, ये सारी ऑर्डरिंग्स हमारी कंसिडर होंगी, राइट। So this is the actually the main approach that we are actually following. Okay, amazing. तो अब एक बार I will give you the code go through also, so that you guys can understand in a good way. And then I will actually तो हमने पहले ये बात करते हैं ये फंक्शन क्या है। This function is actually a check function, and this check function actually contains some different things. I will tell you what, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि we have 3 vectors, right? तो I'm storing that 3 vectors in a vector of vector। तो हम तीनों वेक्टर का इनपुट ले रहे हैं और हम कह रहे हैं वीपी ऑफ आई इक्वल टू वी, सो वीपी ऑफ 0 इक्वल टू वी, वीपी ऑफ 1, वीपी ऑफ 2। तो वीपी ऑफ 0 मीन्स एलाइस का एलाइस प्राइस, वीपी ऑफ 1 मीन्स बॉब प्राइस, वीपी ऑफ 2 मीन्स चार्ली प्राइस। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस x, तो व्हाट इज दिस x? दिस x इज द टोटल सम ऑफ द वेक्टर डिवाइड बाय 3 का सील वैल्यू। जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड, ये जो बोल रहे हैं लोग टॉट बाय 3, वही है ये x, द सील डिवीजन ऑफ टोटल डिवाइड बाय 3। ठीक है, सील डिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पे +2 लगा दिया है। ओके, इफ यू वांट यू कैन यूज द सील फंक्शन ऑल्सो, नो वरीज। अब हमें क्या करना, हमें चाहिए 3 पार्ट्स सब एरे के, एक पार्ट सब एरे का फ्रॉम एलाइस जिसका सम एटलीस्ट के हो, 1 पार्ट फ्रॉम बॉब हुज सम इज एटलीस्ट के, 1 पार्ट फ्रॉम चार्ली हुज सम इज एटलीस्ट के, एंड दिस पार्ट शुड नॉट बी ओवरलैपिंग। अब बात है कि फर्स्ट किसका होगा, मे बी वंस फर्स्ट विल बी ऑफ बॉब, then Charlie, then Alice, either Alice, Bob, Charlie, then Alice, Charlie, Bob, all of that। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर हम 3 चीजें पास कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर पासिंग x, means how much at least sum we want. Next we are passing this vp. Vp is actually this vector of vectors that we have created, which contains prices for 3 of those. And then I have this v. This v is the ordering that we are considering in the current case. तो हम सारे ऑर्डरिंग चेक करेंगे, 0, 1, 2 के लिए भी, 0, 2, 1 सारी ऑर्डरिंग के लिए। अब लेट्स से आर करंट ऑर्डरिंग इज, लेट्स से माय करंट ऑर्डर इज v इज 1, 0, 2, मतलब 1 हम पहले आएगा, मतलब कि हम लोग पहले बॉब के उससे उठाएंगे एलिमेंट्स अंटिल वी गेट 3, x3 है, ठीक है। तो अगर हम पहले बॉब से उठा रहे हैं तो क्या होगा कि पहले इतना लिया, क्या 3 है सब? नहीं। then is sum 3? No. Is sum 3 now? Yes. So you can see when I'm taking this much part of the bob is starting, now sum is 3. Next let's say we have 0 means Alice. Alice will start from here. Is sum 3? No. Is sum 3? No. यहाँ पे end हो गया, means starting from bob this solution is not possible. Let's say our next case is 0, 2, 1 starting from Alice until we get 3, इतना लिया, इज इट इज 3? यस, एक में मिल गया। नेक्स्ट हमारा 2 है, मीन्स चार्ली, इज इट 3? नो। इज इट 3? नो। इज इट 3? यस, चार्ली मिल गया, अ सब एरे ऑफ साइज 3। नाउ यहाँ से अब शुरू होगा बॉब, इज इट 3? नो। अगेन ये भी नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल क्या हो रहा है, द ओनली थिंग कमिंग पॉसिबल हियर इज 0, 1, 2। इस केस में वही है, तो हम लोग एलाइस में इतना लिया, ओके इट इज 3, बॉब में ओके 6, फिर चार्ली में 6, ओवर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर अभी ये आंसर भूल जाओ या फिर देख भी लो, तो आंसर तो सम तो हमारा पता है, सम हमारा करंट सम है, द सम ऑफ द करंट इंडेक्स वेयर वी आर। इंडेक्स हमारी 0, 1, 2, तो पहले हमारी भाई हम लोग ये देखेंगे, फिर ये, तो 0 है,
L0 L मतलब हम लोग अभी L से लेके आगे तक कितनी सब एरे लेनी है वो हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग पूरा इसमें वीपी में आइट्रेट करेंगे, वॉट एवर द साइज ऑफ द वीपी इज, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो हम एक इंडेक्स में हैं अभी, लेट्स से वी आर करेंटली एट द इंडेक्स नंबर 0। तो जो भी हमारे इंडेक्स नंबर 0 है हम उसमें वीपी में होंगे। अच्छा वेट, ये तो नॉर्मल एन है, इसमें हमें इंडेक्स से मतलब नहीं है। ये तो सॉरी, ये तो सिंपल सा हमारा मतलब पूरे एन के लिए आइट्रेट हो, बिकॉज एट द लास्ट हमें पूरा 0 से लेकर एन तक सारे सब एरो को डिवाइड करना, राइट। अब क्या है कि अभी हमारा जो करंट आई एन डी है, अभी हमारा जो करंट आई एन डी है, वी ऑफ आई एन डी, जो भी करंट आई एन डी है, अब वो हो सकता है कि वी हमारा 012 हो, या 102 हो, या 201 हो, या 012, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो भी पहला इंडेक्स है उसको हम देख रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग का वेक्टर वी आर फाइंडिंग द वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द पर्सन 012 दैट वी हैव, और उस पर्टिकुलर वेक्टर का हम ith इंडेक्स को सम में ऐड कर रहे हैं। अब अगर हमारा सम हमारे टारगेट से बड़ा हो रहा है, मीन्स इफ आवर सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू आवर टारगेट, मीन्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन विच वी आर करेंटली कंसिडरिंग, एल से लेके आई तक उसकी सवेरे होगी। वो हमने आंसर में इंसर्ट कर लिया, हमने इंडेक्स को बढ़ा दिया, सम को अगेन 0 कर लिया, और फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए एल हमारा i+1 हो गया। तो पहले मान लो एल हमारा यहाँ पर था, अब यहाँ तक आके सम हो गया आपका 3, तो अब अगला एल यहाँ से शुरू हो गया अगले इंडेक्स के लिए, राइट। और फाइनली अगर आपका इंडेक्स 3 है, मतलब कि फॉर 012 तीनों के लिए यू हैव गॉट द सम ग्रेटर देन इक्वल टू के, फाइनली आपका इंडेक्स अगर 3 हो गया है, तो फिर आंसर में यू हैव 3 थिंग्स। पहले 1, फिर 1 के इंडेक्सेस, मतलब बॉब के, फिर एलाइस के, तो आप उसको सॉल्ट कर लोगे, बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू प्रिंट इंडेक्सेस ऑफ एलाइस, देन बॉब, एंड देन चार्ली। आई एम डूइंग +1 बिकॉज दे वांट 1 बेस इंडेक्सिंग, राइट। So if you will see, I have done this brute force only, and when I have got the answer, I have written true, else written false. So you can see I'm calling this function for all the possibility, 012, 021, 102, 121, and all of that, right? So this is how, guys, we are solving this particular problem. But still, if you have any doubt regarding this, that what I did here, you can ask that to me in the comment section, or you can ask that to me in the Telegram channel, right? Amazing. Now, guys, the very last problem for this particular video, which is swap dilemma. Guys, this is actually a problem, a pretty complex problem it is. And it is a problem of where we are using a different technique of very famous problem called count inversion. So I will tell you. So this is a problem, guys, count number of inversions. No, this is different. This is the problem. This problem says that for a particular array, you have to find how many inversions are there. So this problem is a prerequisite of this problem. So if you have not solved this problem called count inversions, please solve this. This is a very classical problem of merge sort, and this everyone should know, because this problem approach we will use in our solution of this question. Okay, so I will first recommend you to please go through this problem. I will tell you what this inversion count is. So in this inversion count, inversion means how many pair of elements are there in your array where first element is greater than the next element. मतलब अगर सॉर्ट करें एरे को तो वहां पे इन्वर्जन होगा। इफ यू विल सी, यहाँ पर आप देखो 2,4, ओके सॉरी, 2,1 इज इन्वर्जन, फिर 2,4 नहीं है बिकॉज 4 बड़ा है, राइट। 2,4 एक इन्वर्जन है, देन 4,1 एक इन्वर्जन है, देन 4,3 एक इन्वर्जन है, एंड दैट्स इट। 3 इन्वर्जन है। आप देखो, मान लो आपके एरे एफ 2, 4, 1, 3, 5, तो ऐसे कौन कौन से पेयर है, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर whose first value is greater than the second value. So you can see 2,1 is there, 4,1 is there, and 4,3 is there. मीन्स इतने इन्वर्जन्स हैं, ठीक है। और इसको निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ऑफ यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू प्लीज डू दिस प्रॉब्लम एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व इट यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो ये तरीका होता है, मर्ज सॉर्ट के थ्रू आप निकाल सकते हो कि हाउ मेनी इन्वर्जन्स आर देयर। ओके, आई थिंक एक्चुअली I might be having. So, given an. Okay. I think I also have a video tutorial of this problem maybe somewhere.
यू कैन चेक इट आउट, ओके। या सो अब आते हैं कि हाउ वी आर यूजिंग इट हियर। तो यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पे हमें दो एरेज रखे हैं हियर, दे आर गिविंग अस टू एरेज ए एंड बी एंड दोज टू एरेज आर नॉट करेंटली इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। बट दे आर आस्किंग अस टू मेक देम इक्वल एंड मेक देम इक्वल बाय हाउ, make them equal by swapping elements of that array. So they are saying that you have to choose two indexes L and R in A and some index P and Q in B, and you have to swap both of that indexes in A and B, elements of that indexes. And one condition is that the difference between the indexes which taken in A should be equal to the difference between the indexes in B. मतलब अगर मान लो A में आपने L लिया है 1, R लिया है 3, तो डिफरेंस कितना हुआ 2, तो P और Q का डिफरेंस भी इट शुड बी 2, ठीक है। तो सेम डिफरेंस पे, सेम डिस्टेंस पे यू विल स्वैप द वैल्यू, राइट। अब क्या होगा कि आपको यू हैव टू मेक बोथ द एरेज सेम। नाउ दे आर आस्किंग वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक बोथ ऑफ देम सेम और नॉट। तो इट इज पॉसिबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? क्योंकि देखो यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 प्रेजेंट ही नहीं है, तो यू कैन नॉट एक्चुअली चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू शुड बी सेम। If values are not same, you cannot make the array equal because you are just rearranging. You are not adding or removing an element. हाँ, this you can make same because at least elements are same. तो ये कैसे पता करें एलिमेंट सेम है कि नहीं? तो अब if after sorting both the arrays they are becoming equal, that means they can be made equal after the solution. तो पहले तो दोनों array के एलिमेंट सेम होने चाहिए। And how we can know whether the both the arrays are anagram of each other or not? Anagram क्या होता है? Arrays that contain same character in different ordering. तो एनाग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों एरे को सॉल्ट कर लेंगे एंड इफ आफ्टर सॉल्टिंग दे आर इक्वल, दे बिकेम इक्वल, दैट मीन्स कि दे कैन बी मेड इक्वल आफ्टर सम ऑपरेशन। सो मीन्स आउटपुट ट्रू हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट विल बी ट्रू, बट हाँ ट्रू हो सकता है। बट इवन अगर वो सॉल्ट करने के बाद इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देखो आफ्टर सॉल्टिंग दे विल नॉट बिकम इक्वल, दैट मीन्स आंसर विल बी इंस्टेंटली नो। तो आप देखो अगर हम ये दोनों एलिमेंट्स ले लें, ये ले लें, तो इसमें 7 है, इसमें 7 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो व्हाट विल डू, हाउ विल चेक दैट? तो दिल सॉर्ट बोथ ऑफ देम, तो इट विल बिकम 1 2 3 4 5, दिस विल बिकम 1 2 4 5 7 एंड आफ्टर सॉर्टिंग दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी मेक इट ट्रू। बट अगर हम इसी की जगह पे इफ यू विल सी सम मोर केस, लेट्स से ये वाला केस देखें, तो इन दिस केस एक्चुअली वी कैन मेक देम इक्वल। अब बात आती है हाउ वी कैन मेक दैट इक्वल। So we have to make them equal after swapping numbers. Look guys, when I'm saying after swapping numbers, so when I will do a swap here, I have to also do the swap in B, not at the same index, no, but the difference of the indexes should be same. मतलब यहाँ पे मान लो हम swap यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा सेम विंडो को swap करना पड़ेगा, either here or somewhere, right? Difference between I and J where you are doing swap should be same, ठीक है। अब देखो उसमें करेंगे क्या गाइस, हम लोग विल फाइंड द इन्वर्जन काउंट ऑफ बोथ। तो अब देखो यहाँ पर इन्वर्जन काउंट हमारा 0 है, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, बट यहाँ पे इफ यू विल फाइंड इन्वर्जन काउंट, इफ यू विल फाइंड इन्वर्जन काउंट, इट इज एक्चुअली देखो 4,3 है, देन 4,2 4,1, तीन तो ये हो गए, फिर 3,2 3,1 और फिर 2,1। तो यहाँ पे पूरे पूरे 6 इन्वर्जन काउंट है, ठीक है। तो ए में इन्वर्जन काउंट इज 0, बी इन्वर्जन काउंट इज 6, बट स्टिल आउटपुट विल बी यस। हाउ? बिकॉज हमें यहाँ पे इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे अभिनव यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर भी हमें करने तो पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 6 जरूरत है, तो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो हमें यहाँ पर 6 इन्वर्जन की जरूरत है, कहाँ कहाँ पर हमें पता है। पहला इन्वर्जन हमारा होगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो हमारा ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब बोलोगे, और हम लोग हमेशा इन्वर्जन जब करेंगे ना गाइस, व्हेनेवर वी विल डू इन्वर्जन वी विल जस्ट टेक फॉर 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स। जरूरत नहीं है कहीं और का लेने की, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जो इन्वर्जन हो, वी डोंट हैव टू डिक्रीज नंबर ऑफ इन्वर्जन। हमने यहाँ पे 2 किया, हम लोग यहाँ पे कहीं भी 2 कर लो, लेट्स से यहाँ पर। अब नेक्स्ट इन्वर्जन रिक्वायर्ड इज लेट्स से हियर, आप फिर से इनको चेंज कर लो। तो जितनी बार आप इवन नंबर ऑफ टाइम यहाँ करोगे ना और सॉल्यूशन, दिस विल बिकेम सेम, वो फिर से सेम हो जाएगा। अब लेट्स से यू विल डू हियर, फिर से शो कर लो, लेट्स से यू विल डू हियर, सॉरी
फिर से यहाँ पे कर लो. Now you will let's say do here. फिर से यहाँ पे कर लो. Now let's say you will do here. फिर से यहाँ पे कर लो. तो अब देखो कि यहाँ पे all the 6 inversions are done and the array became 1 2 3 4 मतलब sorted. और यहाँ भी आप देखो because 6 inversion थे, तो when you will do 6 inversions on the same two indexes they will remain same. तो अगर आप even number of inversions करोगे ना दो indexes पे, तो after even number of inversions it will remain same और यहाँ पे it will become sorted. तो जो काउंट इन्वर्जन वाला क्वेश्चन है ना, ये हमें बताता है कितने इन्वर्जन्स पॉसिबल, कितने इन्वर्जन्स रिक्वायर्ड है, हाउ मेनी इन्वर्जन्स आर रिक्वायर्ड एक्चुअली टू गेट द एरे सॉर्टेड. ठीक है, तो देखो अगर नंबर ऑफ इन्वर्जन सेम है, लेट्स से कि एरे ए रिक्वायर्ड एक्स नंबर ऑफ इन्वर्जन्स एंड एरे बी आल्सो रिक्वायर्ड एक्स नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, देन ऑब्वियसली विल सिंपली डू भाई यहाँ भी एक्स सेम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स है, तो दोनों सेम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स करो, इंडेक्स अलग अलग हो ही सकती है. Do x inversions in A also and do x inversions in B also, and then both A and B will become equal. Equal means sorted. But कुछ केस में क्या होगा कि let's say यहाँ पे x यहाँ पे y, तो हो सकता है x y से बड़ा हो या फिर हो सकता है कि y x से बड़ा हो. उस केस में क्या, जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 0 inversions are equal, यहाँ पे 6 inversions are equal. तो जब भी ऐसा केस आएगा when x and y are not equal, उस केस में जो उनका डिफरेंस है ABS of x और y वो इवन होना चाहिए. बिकॉज अगर डिफरेंस इसका मान लो इसमें देखो आप कि इसमें इसको 6 ज़्यादा इन्वर्जन चाहिए, इट वॉन्ट्स 6 मोर इन्वर्जन्स. सो बिकॉज इट वॉन्ट्स 6 मोर इन्वर्जन्स, हम यहाँ पे 6 इन्वर्जन कर सकते हैं और सेम टाइम पे वी कैन डू 6 इन्वर्जन्स हियर ऑल्सो ऑन द सेम टू इंडेक्सेस, बिकॉज आफ्टर इवन नंबर ऑफ इन्वर्जन्स यहाँ पे कोई चेंज आएगा ही नहीं और यहाँ पे आप जो भी रिक्वायर्ड हो कर लो. ठीक है, अब मान लो आपकी एक ए है उसमें आपको 10 इन्वर्जन चाहिए, बी में आपको चाहिए 6, तो भी चल जाएगा क्योंकि आपने पहले तो आपने 6 कर दोनों में, तो इसमें आपने 6 इन्वर्जन कर लिए, इसमें आपने 6 इन्वर्जन कर लिए, यहाँ पे 0 बचे, यहाँ पे 4 बचे, आपको यहाँ 4 इन्वर्जन करने कर लो, डू 4 इन्वर्जन शेयर. और यहाँ भी आप 4 कर सकते हो. कैसे? अब सेम इंडेक्स में 4 इन्वर्जन करो, इन सेम टू इंडेक्सेस i, j स्वैप देम 4 टाइम्स, दे विल बिकम सेम, दे विल रिमेन सेम. हाँ, बट अगर इवन होगा, मान लो यहाँ पर आपका a था 7 और b था 4, तो अब डिफरेंस आ रहा है 3, तो हमें यहाँ पे 3 ज़्यादा इन्वर्जन्स करने हैं. अब फॉर 3 मोर इन्वर्जन्स हाउ वी कैन हैंडल द केस इन बी, बिकॉज फिर बी में अनइक्वल हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड, राइट. तो मेन एजेंडा ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू नो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, विच इज दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब देखो मैंने सॉल्यूशन में सबसे पहले आई हैव टेकन दिस कोड फ्रॉम समवेयर, ऑब्वियसली आई हैव नॉट रिटन, ऑफ मर्ज सॉर्ट. This is the code of the merge function, this is the code of the merge sort function, which is actually returning the inversion count, and this swap count is just a function where we will pass our array and it will count the number of swaps for it. Number of swaps means number of inversions basically, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, A12 देख सकते हो या सबमिशन वगैरह देख सकते हो, राइट. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नाउ एज आई टोल्ड यू, sorry I forgot to remove this function, so this is a function of a different third problem वो मैंने हटाया नहीं है, this is not required here. Now simply what is happening here is कि I'm first taking input of both ARR and BRR, and now I'm creating 2 more arrays CRR and DRR which are just the copy of ARR and BRR. Why? Because we need to sort these arrays, तो हम इनको sort कर लेंगे. एंड अगर आफ्टर सॉर्टिंग वो इक्वल नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है आफ्टर सॉर्टिंग, तो हमारा आंसर तुरंत नो हो जाएगा. एल्स हम क्या करेंगे, एल्स विल फाइंड द नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड इन एरे ए, number of swaps required in array Q. Then I will find the difference of these number of swaps required. And if difference is even, I will print yes, else I will print you, as I told you. And that's it. इतना ही है बस. But if you know this inversion count question, it will be very easy for you to get this problem, right? And I can understand guys, this was a really complex problem, but still if you have any doubt in this problem, you can ask that to me in the Telegram channel, or you can ask that to me in the comment section, okay, and I will reply. Okay, so guys, this is all for this particular video. We discuss the first 4 problems of this particular contest. I have again started creating videos, so now expect regular videos from me. Thank you for watching this particular video. See you in the next video. Thank you.